part over here, that is first topic to be discussed over here, is the introduction part. Okay, so what is all about the switching systems, is why switching systems was designed, what was the need for that, and why it has been introduced. Okay, so let us start discussing about this switching systems introduction. Okay, so what is saying? Switching systems and associated signal systems are essential part of the telecommunication networks. The meaning is the switching system is very important, essential part in any of the signaling system or telephone system that you take. Now, the functions performed by the switching system or a subsystem in order to provide customers with services are called as facilities. For example, the switching system will not give only the switching operation. Along with that, it will give you the other facilities also. Okay, so other facilities also means, for example, you have message passing and you have call passing. That are two basic operations. Along with that, the ringtone, caller tone, and special MMS service. Fine. So all such things are called as special services. All those are special services apart from the basic services. Such services are called as the facilities over here. Okay. Now let us go further. Over the year, the design of switching system has become ever more sophisticated in order to provide additional facilities which enable networks to provide more and more services. What do you mean by this is, initially when the switching system was designed, that only the basic switchings were available, basic switching operation, for example, message passing and calling, only that was possible. So as the customer need increased, so the demand also increased. Because of that, we are supposed to change the network facilities also. The number of facilities were increased compared to the earlier years. Okay, so in spite of having complex modern switching systems, there are basic functions which must be performed by all switching systems. What is the meaning of this is, no doubt we are adding more and more facilities to the switching systems, but we should not forget the basic switching systems, basic switching operations like calling and messaging. Okay, that is what he is speaking in introduction part. Okay, so this is all about introduction to this digital switching system. Now let us take the second topic to be discussed over here, that is message switching, one of the important aspect over here. Fine. Are you able to listen to me? Give me reply. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Okay, sir. okay, okay. Thank Yes, you. sir. Hmm. Yes, sir. So, okay, okay. So let us continue further. That is a message switching. Okay. So what is this message switching? Before the invention of a telephone system, there was a system for exchanging messages. Okay. What we refer to as telegraphs. Okay. You heard of telegraph, right? So that telegraph system was designed. Now, what this in this message switching they do is, this is the diagram. Just see over here. I'll explain it later. What other things are there? There are four diagrams over here. Okay, figure A, figure B, C, and D. In the first figure, just see here. From first block to second block, the data is moving, and from second block, manually they are giving it to the next part, and from there it is being given to the destination. So here, what he is doing is, he's taking two people. Okay, there are two people, one is in town A, another is in town B. For example, एक बीजापुर में है, एक बागलकोट में है. Okay, and there was no telegraph circuit between A and B. A और B के बीच में कोई भी telegraph circuit नहीं है. बोले तो direct, there is no direct connection between the बीजापुर and बागलकोट, डायरेक्टली नहीं है. बट फिर भी आप बात करना चाहते हो या आपको मैसेज भेजना है, तो क्या करना पड़ेगा? What they do is they introduce a intermediate switching station that is called as switch, that is C. Now what they do is they'll connect A to C, and from C to B they'll make a connection. For example, आपको बीजापुर से बागलकोट जाना है,
कनेक्शन मैसेज को भेजना है तो बीजापुर से आपको कौन सा भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, आपको इनडायरेक्ट वे में जाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल बीजापुर से एक लेट अस से इन नियर कोलार, ओके, नियर यूकेपी नियर कोलार देयर इज अ सिस्टम सी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, बीजापुर वाले को कोलार सिस्टम को कनेक्ट करना पड़ेगा और कोलार से लेके बागलकोट को। तो ऐसे इंटरमीडिएट सिस्टम यूज करके हम लोग ए टू बी कनेक्शन पॉसिबल करवाते हैं करके बोल रहे हैं। ओके, दिस कुड बी अचीव्ड बाय द प्रोसेस नोन एज मैसेज स्विचिंग। ये जो है ना ए टू सी देते हैं, बाद में सी टू बी जो देते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, ए टू सी स्विच कर रहे हैं और सी टू बी भी स्विच कर रहे हैं। यहाँ पे 2 बार हम लोग स्विचिंग कर रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज व्हाई वी कॉल दिस एज मैसेज स्विचिंग। इज दैट फाइन? मैसेज स्विचिंग का मीनिंग क्या है, वी आर स्विचिंग द मैसेज not directly from source to destination, instead we are using intermediate station. So to that intermediate station, source to intermediate station, from intermediate station to the source, that the destination. So this is what is called as switching. Now आगे देखो क्या बोल रहा है, the operator at A sent a message to C where it was written down by the receiving operator. पहले के दिन में कंप्यूटर्स नहीं थे, इलेक्ट्रॉनिक्स भी नहीं थे। अभी आपको ए से लेके बी को आपको डेटा भेजना है या मैसेज भेजना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले सी को भेजना पड़ेगा। मैं बोल रहा हूँ सी से लेके बी को भेजना है, तो देयर इज नो एनी डायरेक्ट कांटेक्ट ओवर हियर। ओके, ये डायरेक्ट कांटेक्ट बोले तो डायरेक्टली वो लोग डायरेक्टली, कैन यू सी मी? Yes, sir. Okay, see, there was no contact directly between A to B. A to B डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं था, A से लेके C, बाद में C से लेके B तक जाना चाहिए था। अभी आजकल के जमाने में क्या है, कंप्यूटर सिस्टम है, A से C को आ जाता है, C को भी ऑटोमेटिकली स्विचिंग हो जाता है। बट यहाँ पे क्या हो रहा, पहले के दिन में कंप्यूटर्स नहीं थे, इलेक्ट्रॉनिक्स भी नहीं थे, इसलिए वो लोग क्या करते थे, A से लेके C जब डेटा जाता है, C में एक ऑपरेटर बैठा रहता है और वो ऑपरेटर जो है ये क्या मैसेज भेजना चाह रहा है उसको पहले वो लिख लेता था। फॉर एग्जांपल आज के जमाने में बोलना है तो बुक और पेन लेके आप जैसा नोट करते हैं, वैसा क्या करता था वो, यूज्ड टू हैव द रिकॉर्डिंग ऑफ द मैसेज गिवन बाय ए। ओके, then that recorded message, that is that written down message, is passed on to destination, and in order to record this data they used to use something called as punch cards. आपको दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे ब्राउज करके रखा हुआ है। See, these are called as punching cards. Okay, punching papers you can say. अगर आपको 0 रिप्रेजेंट करना है तो एक छोटा कुछ भी पंच नहीं करेंगे, 1 रिप्रेजेंट करना है तो पहले की जगह में इसे पंच करेंगे, 2 को भेजना है तो आपको यहाँ पे सेकंड की जगह में पंच करेंगे, 3 के लिए डबल पंच करेंगे, 4 के लिए एक पंच करेंगे। इट इज समथिंग लाइक योर बाइनरी नंबर सिस्टम। Okay, that is 000, 001, 010, 1011 and 100 like that. So it is you are something like your the binary number system that you are using. तो ऐसे ये पंच करने के लिए पहले मैनुअल सिस्टम था और मैनुअल सिस्टम यूज कर वो पंचिंग करने के लिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक छोटा सा मशीन दिखाया गया है, यहाँ पे इसको यूज करके वो लोग क्या करते थे, ये पेपर पे पंचिंग करते थे। ओके, ये क्या सर नंबर के बारे में बोल रहे हैं, अगर आपको मैसेज टाइप भी करना है, हाई बोल के टाइप करना है, एच के लिए एक कोडिंग अलग सा होगा और आई के लिए एक अलग सा कोडिंग होगा। उसको देखने के बाद क्या बोल रहा था, ये सोर्स वाला हाई बोल रहा है बोल के, वही डेस्टिनेशन में हाई बोल के बोल रहा है, देख भाई ये बोल के डेस्टिनेशन को भेज देता है। ओके, सो दिस वाज व्हाट ऑल अबाउट द पंचिंग कोड्स। तो व्हाई आई टोल्ड यू दिस इज, तो अर्लियर सिस्टम व्हाट यूज्ड टू डू इज द ऑपरेटर एट ए, what is saying, okay, so the operator at A sent a message to C where it was written down. वो मैसेज को लिख लेता था, कैसे लिखा था, पेन पेपर जमाना नहीं था उस टाइम में, पंचिंग कार्ड्स यूज करते थे, तो वो पंच करता था और रख लेता था। ओके, रिसीविंग ऑपरेटर, now this operator recognize the address of the message that is being sent to B. वो मैसेज के साथ साथ वो मैसेज को कहाँ पे भेजना है उसको भी वो नोट डाउन कर लेता था। ठीक है, डेस्टिनेशन एड्रेस आल्सो इट यूज्ड टू मार्क इट डाउन। तो वो डेस्टिनेशन एड्रेस मिलने के बाद
then it was retransmitted. Okay, वो ऑपरेटर क्या करता था, मैसेज को रीट्रांसमिट करता था. ओके, कहाँ पे रीट्रांसमिट करना है, उसको बी तक भेजना है. सो दिस वाज द टोटल मैनुअल प्रोसेस. ये मैनुअली क्या करता था, यहाँ पे देखो फर्स्ट फिगर में क्या बोल रहा है, इन्हें ये है, ये बी है. ठीक है, तो ये क्या करता था, ये से वो डेटा लेता था, ये से डेटा ओरिजिनेट होता था. यहाँ पे सी में क्या करता था, ऑपरेटर बैठ के ये जो डेटा भेज रहा है, जो मैसेज भेज रहा है, उसको यहाँ पे नोट कर लेता था पंच कॉर्ड्स में. ओके, और उसके बाद क्या करता था, इसको यहाँ पे आके क्या करता था, उसको बी की तरफ भेज देता था. ओके, सो हियर द टोटल system was manual. Fine. Okay, so this was called the figure A is called as manual transfer of the hard copy of the data. जो पंचिंग कर रहे हैं वो हार्ड कॉपी बोलते हैं ना, सॉफ्ट नहीं रहता, हार्ड रहता, हार्ड कॉपी रहता है, तो इसलिए इसको क्या बोल रहा है वो, इट वाज सेड टू एज मैनुअल ट्रांसफर ऑफ हार्ड कॉपी. फाइन, आगे देखो क्या बोल रहा है, सब्सिक्वेंट टेक्निकल डेवलपमेंट्स एनेबल्ड. ओके, इसके बाद क्या हुआ, फिर से डेवलपमेंट स्टार्ट हो गए. सब्सिक्वेंट टेक्निकल डेवलपमेंट्स एनेबल्ड improvements to be made in the message switching. बाद में क्या हुआ, जैसे जैसे डेवलपमेंट बढ़ता गया, वो क्या करता गया, मैसेज स्विचिंग में जो भी इम्प्रूवमेंट्स है वो इसको इन्वॉल्व करते गया. ओके, ना द first message received at C was automatically recorded on punched tape and subsequently torn off the receiver by the operator. तो ये क्या करता है, ये पंचिंग कॉर्ड जो है उसमें ऐसे पंच कर लेता था ना पहले, उसको डेस्टिनेशन को भेजने के बाद वो जो पेपर रहता था उसको फाड़ के फेंक देता था. ठीक है, जो पेपर पे वो ऐसा पंच करके रखा था ना, वो डेटा को ले लिया, लेके क्या किया, सी को भेज दिया. भेजने के बाद वो जो पेपर है, वो पेपर को क्या करता था, उसको फाड़ के फेंक देता था. दैट इज व्हाट ही इज रेफरिंग टू एज टर्न ऑफ बाय द रिसीवर बाय द ऑपरेटर. ऑपरेटर उसको क्या करता था, who read the address from the tape. This message was then retransmitted automatically from the same tape as shown in figure B. यहाँ पे देखो क्या कर रहा है, ये से लेके ऑपरेटर को आ रहा है, ऑपरेटर को आने के बाद फिर से उसको डेस्टिनेशन को भेज रहा है. ये आरपी एटी बोले तो, आरपी R/P बोले तो इट इज री-प्रिफोरेटर. ओके, आरपी मीनिंग इज इट इज री-प्रिफोरेटर. एटी बोले तो क्या है, यहाँ पे देखो ऑटोमेटिक ट्रांसफर. R/P इज री-प्रिफोरेटर, A/T बोले तो ऑटोमेटिक. ये री-प्रिफोरेटर क्या करता था, मैसेज जो भी आता है उसको लेके अपने पास रखता था, बाद में उसको नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ भेजता था. कैसे भेजता था, ऑटोमेटिकली भेजता था. ये कब पॉसिबल हुआ, आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स. फाइन. ओके, नाउ जस्ट सी व्हाट ही इज सेइंग. दिस वाज नोन एज, ये सिस्टम को क्या बोल रहा है, दिस वाज नोन एज टॉर्न टेप रिले सिस्टम. बोले तो मैसेज आने के बाद नोट डाउन कर लेना है, उसको नेक्स्ट सिस्टम को नेक्स्ट डेस्टिनेशन को भेजना है, और जो भी वो पेपर में आया है उसको फाड़ के फेंक देते थे. ये सिस्टम को लोग क्या बोल रहे हैं, इट वाज रिले, टॉर्न टेप रिले सिस्टम. लेटर आउटगोइंग रूट वाज आल्सो सिलेक्टेड ऑटोमेटिकली. दिन में क्या हुआ, ये पहले यहाँ पे क्या कर देते, ये सिस्टम में देखो, ये सिस्टम में क्या बोल रहा है, ये यहाँ पे ऑपरेटर से डेस्टिनेशन को मैन्युअली भेज रहा है. ठीक है, इसके नेक्स्ट इसमें देखो, ये टू सोर्स से लेके यहाँ पे इंटरमीडिएट स्टेशन को आ रहा है. फ्रॉम दैट ऑटोमेटिकली इट इज सेंडिंग टू डेस्टिनेशन. यहाँ पे एक ही डेस्टिनेशन था, यहाँ पे बहुत सारे डेस्टिनेशन है. लेट अस से 1 2 3. अगर ए से लेके बी का फर्स्ट रिसीवर को जाना चाहिए तो ये ऑटोमेटिकली फर्स्ट को कनेक्ट हो जाता है, और ए से लेके आपको बी स्टेशन जाना है तो ये सेकंड को आ जाता है. अगर सी को भेजना है तो ये सी को आ जाता है. ठीक है, so automatically depending on the destination that is being read over here, this automatic selection knob will select the different receivers depending on the requirement. Fine, this was the case in third option, that is manual transfer of पेपर टेप विथ ऑटोमेटिक रूट सिलेक्शन. यहाँ पे जो सिलेक्शन जो रहा है वो ऑटोमेटिक रूट सिलेक्शन हो रहा है. ठीक है,
इसको लोग क्या बोल रहे हैं, टर्न टेप रिले सिस्टम। ओके, आगे देखो क्या बोल रहा है। ओके, फाइनली द पेपर वाज एलिमिनेटेड। यहाँ तक ये जो सिस्टम है, यहाँ तक क्या हो रहा था, वो पेपर पे पंच करके यूज करके उसको भेज रहे थे। अभी क्या कर रहे हैं, पेपर को स्टॉप कर रहे हैं वो लोग। दे हैव स्टॉप द पेपर, दे आर यूजिंग समथिंग एल्स। सो पेपर को एलिमिनेट करके बाय स्टोरिंग द मैसेज इलेक्ट्रॉनिकली। जो भी मैसेज जो सेंडर से जो आ रहा, पहले पेपर पे जैसे पंचिंग कर लेते थे, अभी उसको स्टॉप करके क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिकली मैसेज को क्या कर रहे हैं, स्टोर कर ले रहे हैं। ओके, इलेक्ट्रॉनिकली दे आर स्टोरिंग द मैसेज एंड एनालाइजिंग द एड्रेस। स्टोर करने के बाद क्या करना चाहिए, कहाँ पे जाना चाहिए, डेस्टिनेशन एड्रेस को एनालाइज कर लेता है। बाद में क्या कर देता है, बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक गेट इट यूज टू सेंड टू द डेस्टिनेशन। यहाँ पे देखो, जो भी ये से डेटा आ रहा है वो एक्सचेंज में आ रहा है। आने के बाद क्या कर रहा है, यहाँ पे वो इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर कर ले रहा है मैसेज को। स्टोर करने के बाद डेस्टिनेशन एड्रेस को रीड करके डेस्टिनेशन को, रिस्पेक्ट टू डेस्टिनेशन को यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिकली स्विचिंग करके वो कनेक्ट करके डेटा भेज देता था, मैसेज भेज देता था। ओके, सो ओके, सो modern message switching center is the special purpose electronic computer। यहाँ पे मैसेज स्टोर करना और उसको डेस्टिनेशन को रीड करना और मैसेज को भेजने के लिए कुछ अलग सा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम उनको चाहिए था। उसको लोग क्या बोल रहे हैं, स्पेशल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बोल रहे हैं। ओके, इन फैक्ट मैसेज स्विचिंग वाज द फर्स्ट एरिया इन टेलीकम्युनिकेशन टू अडॉप्ट स्टोर्ड प्रोग्राम कंट्रोल, दैट इज एसपीसी। ये जो स्टोर्ड प्रोग्राम कंट्रोल को हम आजकल जो हम लोग यूज कर रहे हैं, उसको पहले के जमाने में भी यूज कर चुके हैं। किसके लिए यूज कर चुके हैं, टू स्टोर द मैसेज एंड फॉरवर्ड इट। ओके ओके, आगे देखो क्या बोल रहा है, इन मैसेज स्विचिंग सेंटर एन इनकमिंग मैसेज इज नॉट लॉस्ट व्हेनेवर रिक्वायर्ड, आउटगोइंग रूट इज बिजी। फॉर एग्जांपल, आपको ए से लेके बी को डेटा भेजना है और बी कुछ बिजी है, कुछ काम में बिजी है, तो ये से जो डेटा भेजा गया है उसको लोग लॉस्ट नहीं कर रहे, दे आर नॉट डिस्ट्रॉइंग इट, दे आर सेविंग इट टेम्पोररीली टिल द टाइम द बी बिकम्स फ्री। जब ये बी फ्री हो जाता है तब क्या करता है, यहाँ पे जो स्टोर हुआ रहता है वो डेटा को लोग क्या कर रहे हैं, आगे भेज रहे हैं। ठीक है, सो हियर दे आर स्टोरिंग द इनकमिंग मैसेज whenever the outgoing route is busy, it is stored in a queue। ये जो मैसेज है उसको क्यू में स्टोर करता है with any other messages for the same route or retransmitted when required circuit becomes free। whenever the required circuit becomes free, the stored message will be transferred। okay, अब आगे क्या बोल रहा है, मैसेज स्विचिंग is thus an example of delay system or queuing system। ये मैसेज सिस्टम को क्या बोल रहा है वो लोग, इसको डिले सिस्टम भी बोल रहे हैं और इसको कभी कभी क्या बोलते हैं, क्यूइंग सिस्टम भी बोल रहे हैं, क्योंकि अगर डेस्टिनेशन बिजी है तो मैसेज क्या होगा, वो मैसेज क्या होगा, अपने आप वेटिंग लिस्ट में आ जाएगा। बाद में जो डेस्टिनेशन फ्री होने के बाद अपने आप वो क्या होता है, ट्रांसमिट हो जाता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द मैसेज स्विचिंग। आगे देखो क्या बोल रहा है, मैसेज स्विचिंग इज स्टिल यूज्ड फॉर टेलीग्राफ ट्रैफिक। आजकल की जो हम लोग टेलीग्राफ सिस्टम जो यूज कर रहे हैं वहां पे आज भी हम लोग यूज कर रहे हैं मैसेज स्विचिंग। ओके, एंड अ लिटिल मॉडिफाइड वर्जन ऑफ इट वी आर यूजिंग एंड दैट इज नोन एज, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैकेट स्विचिंग बोलते हैं। पहले जो मैसेज स्विचिंग था उसमें थोड़ा बहुत हम लोग चेंजेस कर लिए, चेंजेस करने के बाद, हेलो कैन यू हियर मी, हेलो, यस सर। ओके, यहाँ पे कुछ मुझे मैसेज आया कि आप तुम्हारा इंटरनेट बराबर नहीं है बोल के। यस सर। ओके, तो ये मैसेज स्विचिंग है ना, आजकल के टेलीग्राफ सिस्टम में भी यूज कर रहे हैं, बट ऐसे ही यूज नहीं कर रहे, थोड़ा बहुत चेंजेस कर लेके यूज कर रहे हैं। तो जो थोड़ा बहुत चेंजेस कर ले रहे हैं ना, उसको वो लोग क्या बोल रहे हैं, पैकेट स्विचिंग बोल रहे हैं। ओके, एंड दिस पैकेट स्विचिंग इज यूज्ड फॉर डेटा कम्युनिकेशंस। डेटा, आप जो सब लोग मोबाइल जो यूज करते हैं मैसेज भेजने के लिए या रिसीव करने के लिए, मेल भेजने के लिए, वहां पे आप लोग डेटा कम्युनिकेशन यूज करते हैं। तो ये पैकेट स्विचिंग जो है डेटा कम्युनिकेशन में ज्यादातर यूज करते हैं।
ओके आगे देखो, अ डेटा कम्युनिकेशंस नेटवर्क में नीड टू हैंडल अ वाइड वैरायटी ऑफ ट्रैफिक। अगर ये डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम जो है एक ही तरह का डेटा नहीं रहता है, बहुत सारे अलग अलग तरीके का भी डेटा रहता है। वो सभी अलग अलग डेटा को हैंडल करने की कैपेबिलिटी इसमें रहना चाहिए ट्रैफिक। सम मैसेजेस मे बी ऑफ शॉर्ट, ओके कभी कभी क्या रहता है, कुछ मैसेज बहुत छोटे भी रहते हैं, कभी कभी बड़े बड़े मैसेज भी रहते हैं। एक एग्जांपल ले रहा है छोटे मैसेज के लिए, अ यूजर ऑफ अ विजुअली डिस्प्ले यूनिट, एक कुछ यूजर है उसके पास विजुअली डिस्प्ले यूनिट है, may press only few keys to access mainframe computer। ओके बोले तो क्या है, इसके पास एक कंप्यूटर है, उसके पास बहुत सारे ऑप्शन नहीं है, तो बहुत ही कम ऑप्शन से वो क्या करेगा, उसके पास उसको हम लोग क्या बोलते हैं विजुअली डिस्प्ले यूनिट, यहाँ पे क्या करता है बहुत कम कीज प्रेस करके वो कंप्यूटर को एक्सेस करना चाहता है एंड एक्सपेक्ट्स अ क्विक रिस्पॉन्स। वो अक्षय म्यूट ಮಾಡಪ್ಪ। ओके देखो, ये जो जो भी डेटा जो आता है सी विजुअल डिस्प्ले यूनिट में, वो क्या करता है बहुत सारे कम कम की यूज करके उसको यूज करता है, और यूजर से भी बहुत क्विक रिस्पॉन्स चाहिए बोल रहा है। इन कॉन्ट्रास्ट टू द ट्रांसफर ऑफ डेटा फाइल बिटवीन कंप्यूटर रिजल्ट्स इन वेरी लॉन्ग मैसेजेस। ये एग्जांपल नहीं समझ में आया तो उसको गोली मारो। ओके यू फॉरगेट दिस एग्जांपल इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग। इतना ही याद रखो, इसको डेटा कम्युनिकेशन में यूज किया जाता है, किसको, पैकेट स्विचिंग को। और यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग वैरायटी वाला डेटा जो आता है उसको उसको हैंडल करना चाहिए। अलग अलग वैरायटी ऑफ डेटा बोले तो छोटे मैसेज भी आते हैं, बड़े मैसेज भी आते हैं। बोले तो छोटे डेटा भी रहता है, बड़ा डेटा भी रहता है, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग डेटा जो रहता है उसको उसको हैंडल करने के लिए ये पैकेट स्विचिंग को यूज करते हैं। ओके ओके दिस प्रॉब्लम इज सॉल्व बाय डिवाइडिंग। देखो अगर मैसेज बहुत बड़ा है, ओके तो उसको कैसे आप ट्रांसफर करेंगे, तो क्या बोल रहा है, दैट मैसेज विल बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर यूनिट्स नोन एज पैकेट्स। ओके ये मैसेज बहुत बड़ा है तो उसको क्या करता है, छोटे छोटे पार्ट में उसको कट करके उसको भेज देंगे। बाद में रिसीवर साइड में क्या करते हैं, छोटे छोटे पॉकेट्स में जो कट किया गया है उसको सबको ज्वाइन करके एक बड़ा सा मैसेज बना के उसको रीड कर लेते हैं। ओके दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज डिवाइडिंग द बिगर मैसेज इनटू स्मॉलर यूनिट्स, and those smaller units are being called as packets। Okay what is a packet? A packet which sends each of these separate messages। ये पैकेट्स को सेपरेटली उसको क्या करता है, उसको भेजता है। एंड 10 पैकेट्स ऑफ डिफरेंट मैसेजेस आर इंटरलीव्ड ऑन आउटगोइंग सर्क्यूट एंड अ शॉर्ट मैसेज that is single packet does not wait for the transmission of a long message to be completed। एंड इसके बारे में आगे एक चैप्टर बोल रहा है। इसका मतलब क्या है, छोटा मैसेज है तो डायरेक्टली भेज देता है, बड़ा मैसेज है तो उसको पैकेट्स में कट करके भेज देता है। भेजने के बाद रिसीवर साइड में वो सभी छोटे छोटे पैकेट्स को ऑर्डर में उसको कनेक्ट कर लेता है, ठीक है। एंड देन दे विल बी गेटिंग द फुल मैसेज। दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट टॉपिक टू बी डिस्कस्ड, दैट इज मैसेज स्विचिंग।